Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GK, UGC, NET, Police, Railway and in other state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter wise discussion and notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank PO clerk, SSC, GKSS, UGC, NET, Police, Railway and in other state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज करें each chapter each part at least twice and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप. अदरवाइज अगर आपको कोई क्वेरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. And earlier हमने already discuss किया है part 1 of this chapter in which we had talked about IoT and big data analytics. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, वीडियो is available there, आप जाके उस वीडियो को also देख सकते हैं. And today this will be our part 2 of this chapter and topic जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं that are virtual reality and artificial intelligence. Alright, then let's begin. Now what is virtual reality? Virtual reality जो है it is a technology that basically creates a computer made world that looks or that feels real. और जब हम पहनते हैं VR headset या virtual reality goggle हम देख सकते हैं या हम सुन सकते हैं things को as if they are real inside the world. Like for example by wearing VR headset और goggle हम walk कर सकते हैं on the moon, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ओशियंस को या हम प्ले कर सकते हैं गेम्स को इन ए फैंटासी लैंड वर्चुअली. और हम आल्सो यूज़ करते हैं स्पेशल डिवाइसेस लाइक ग्लव्स और कंट्रोलर्स टू मूव, टच एंड टू इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स इन दैट वर्चुअल वर्ल्ड. सो वर्चुअल रियलिटी जो है इट मेक्स यू फील लाइक यू आर रियली देयर इवन दो इट इज़ ऑल क्रिएटेड बाय ए कंप्यूटर. सो वर्चुअल रियलिटी जो है इट प्लेस यूजर्स इनसाइड ए कंप्लीटली डिजिटल एनवायरनमेंट by shutting out the real world and with the help of virtual reality headsets and motion controllers जो users हैं they can look around, they can move and they can interact with the objects in that virtual or unreal space just like they would in the real life. So virtual reality जो है it creates a feeling of presence as if they are actually inside the virtual world. ठीक है. And there are various components of virtual reality. These include first जो है that is VR headset. VR headset जो है it is a special device like a goggle जिसको पहना जाता है over on the eyes जो कि शो करते हैं 3D images और videos जो कि मूव करते हैं when we turn our head which makes us feel like we are inside the virtual world जो कि ब्लॉक आउट करते हैं रियल सराउंडिंग को और आउटसाइड सराउंडिंग को सो दैट वी कैन फोकस कंप्लीटली ऑन द डिजिटल एनवायरनमेंट विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ प्रेजेंस एंड इमर्जन. सेकेंड जो है सेकेंड आर मोशन सेंसर्स. जो मोशन सेंसर्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं हाउ एंड वेयर वी मूव आवर हेड और बॉडी वाइल यूजिंग वर्चुअल रियलिटी जो कि ट्रैक करते हैं हमारी पोजीशन, डायरेक्शन एंड स्पीड को और जो कि अलाउ करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को टू रेस्पॉन्ड इन रियल टाइम. थर्ड आर कंट्रोलर्स. कंट्रोलर्स जो हैं दीज आर द हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो कि अलाउ करते हैं यूजर्स को टू इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स इन द वर्चुअल वर्ल्ड लाइक दे कैन सेंस मूवमेंट्स लाइक ग्रैबिंग, थ्रोविंग, पॉइंटिंग और ड्राइंग एंड ये जो एक्शंस हैं दीज एक्शंस आर रिफ्लेक्टेड इनसाइड द वर्चुअल एनवायरनमेंट. लाइक फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं कंट्रोलर्स को या हम इनको यूज़ कर सकते हैं टू पिक अप ए वर्चुअल टूल, ओपन ए डोर और पेंट इन 3D स्पेस विच मेक्स आवर एक्सपीरियंस मोर एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव. फोर्थ जो है फोर इज सॉफ्टवेयर वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट. सॉफ्टवेयर वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट जो है इट रेफर्स टू डिजिटल वर्ल्ड और सिमुलेशन जहाँ यूज़र जो है दे एक्सपीरियंस इनसाइड द वर्चुअल रियलिटी. Like it can be anything from a video game, virtual classroom or a training simulation
to a 3D tour of a city or museum. So ये जो सॉफ्टवेयर है it generates the visual sounds and interactions that makes the experience feel real, जो कि allow करते हैं users को to explore, learn and to play within a computer created environment. फिफ्थ इज ऑडियो सिस्टम. ऑडियो सिस्टम्स जो हैं दे प्रोवाइड स्पेशल और 3D साउंड दैट मेक्स आवर एक्सपीरियंस मोर रियलिस्टिक एंड इमर्सिव, जो कि अलाउ करते हैं यूजर्स को टू हेयर साउंड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस जस्ट लाइक इन रियल लाइफ. ठीक है. एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी. दीज इंक्लूड फर्स्ट जो है दैट इज फुल्ली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी. ये जो टाइप है वर्चुअल रियलिटी का, इट कंप्लीटली सराउंड्स द यूजर बाय यूजिंग ए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट एंड समटाइम्स एडिशनल डिवाइसेस लाइक ग्लव्स और बॉडी सूट्स, जो कि ट्रैक करते हैं हमारे मूवमेंट्स एक्शंस को, सो दैट वी कैन लुक अराउंड, वी कैन मूव एंड वी कैन इंटरेक्ट विद द वर्चुअल एनवायरनमेंट एज इफ दे वेर रियली देयर. एंड इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर VR गेमिंग, फ्लाइट सिमुलेटर्स और मिलिट्री ट्रेनिंग, जहाँ एक्सपीरियंस जो है दैट फील्स हाईली रियलिस्टिक. सेकेंड इज सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी. ये जो टाइप है वर्चुअल रियलिटी का, इट बेसिकली यूजेस लार्ज स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स और मल्टीपल मॉनिटर्स इंस्टेड ऑफ फुल हेडसेट्स. एंड हियर जो यूजर्स हैं दे कैन आल्सो सी, दे कैन इंटरेक्ट विद द वर्चुअल एनवायरनमेंट, but they are still partly aware of the real world around them. Like for example in flight simulators, especially in pilot training, जो realistic visuals हैं they are projected on the screen to create a virtual experience without a complete immersion. थर्ड is non-immersive virtual reality. ये जो टाइप है वर्चुअल रियलिटी का, इट अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द वर्चुअल एनवायरनमेंट थ्रू ए रेगुलर स्क्रीन, दैट इज बाय यूजिंग डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस और गेम कंट्रोल. एंड इट डज नॉट फुली इमर्स द यूजर, बट रादर जो यूजर्स हैं दे आल्सो रिमेन अवेयर अबाउट द रियल वर्ल्ड अराउंड देम. एंड इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर वीडियो गेम्स लाइक द सिम्स और अदर कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशंस. ठीक है. इसके अलावा देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ वर्चुअल रियलिटी. दीज इंक्लूड फर्स्ट जो है दैट इज इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. वर्चुअल रियलिटी जो है ये अलाउ करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को टू प्रैक्टिस सर्जरीज इन ए सेफ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, जहां वो परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर्स या जहां वो मिस्टेक्स मेक करते हैं और जहां वो सीखते हैं टेक्निक्स विदाउट रिस्किंग रियल पेशेंट्स. एंड ये जो वर्चुअल रियलिटी है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू ट्रेन सोल्जर्स इन रियलिस्टिक कम्बैट सिनेरियोज विदाउट फिजिकल डेंजर. लाइक जो ट्रेनीज हैं दे कैन प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज, वेपन्स हैंडलिंग एंड टीम वर्क इन ए कंट्रोल्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट. एंड VR वर्चुअल रियलिटी जो है इट ऑल्सो अलाउ इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस टू practice complex tasks, operate machinery or explore designs in virtual environment. Like they can test systems, they can troubleshoot problems and they can also learn procedures safely. Second is in gaming and entertainment. Like जो virtual reality है ये allow करते हैं players को to enter and to interact with the 3D virtual objects which makes games more realistic and engaging. And here जो players और जो users हैं they can look around, they can move or they can manipulate objects, which creates an a more realistic experience that feels like they are truly inside the game. और virtual reality जो है it also allow users to attend concerts or to explore theme parks without being physically present there. Like they can experience live performance, they can experience rides or attractions in a fully virtual environment. Third is in healthcare. जो वर्चुअल रियलिटी है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू ट्रीट मेंटल हेल्थ कंडीशंस लाइक फोबियाज एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, जहाँ पेशेंट जो है इनको ग्रेजुअली एक्सपोज किया जाता है टू कंट्रोल्ड वर्चुअल सिनेरियोज दैट ट्रिगर्स देयर फियर्स और दैट give them relaxation in the safe environment, which help them to manage anxiety, overcome fears and to improve coping skills.
इसके अलावा जो वर्चुअल रियलिटी है, इट ऑल्सो अलाउ पेशेंट्स टू रिड्यूस देयर पेन एंड डिस्कम्फर्ट by immersing them in by engaging them in virtual environments, like by distracting the mind with their mind with games, relaxing senses or interactive experiences, जहाँ patients जो है they experience less pain perception during medical procedures or chronic pain treatment. 4 is in architecture and real estate. वर्चुअल रियलिटी जो है ये ऑल्सो अलाउ करते हैं क्लाइंट्स या आर्किटेक्ट्स या डिज़ाइनर्स को टू एक्सप्लोर बिल्डिंग्स एंड स्पेसेस वर्चुअली बिफोर कंस्ट्रक्शन. लाइक जो यूजर्स हैं या जो आर्किटेक्ट्स हैं, दे कैन वॉक थ्रू रूम्स, दे कैन व्यू लेआउट्स एंड दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस डिज़ाइंस इन 3D. और ये ऑल्सो अलाउ करते हैं डिज़ाइनर्स और क्लाइंट्स को टू एक्सपेरिमेंट विथ फर्नीचर, कलर्स, लाइटिंग एंड लेआउट्स इन ए वर्चुअल स्पेस, जहाँ यूजर्स जो है दे कैन सी हाउ चेंजेस लुक इन द रियल टाइम, विच मेक्स एडजस्टमेंट्स मोर इजी एंड प्लेन इंटीरियर्स मोर इफेक्टिव. 5th इज इन टूरिज्म. वर्चुअल रियलिटी जो है ये ऑल्सो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को टू एक्सप्लोर फेमस प्लेसेस, म्यूजियम्स एंड लैंडमार्क्स फ्रॉम anywhere in the world, जहाँ users जो हैं they can walk through ancient ruins, they can view artwork or they can also experience cultural sites virtually. 6th is in retail. Virtual reality जो है ये also allow करते हैं customers को to try products virtually before buying. Like जो shoppers हैं they can see how clothes fit or how furniture looks in this space through applications which help them to make better purchasing decisions and that also reduce returns. ठीक है. इसके अलावा there are various benefits of virtual reality. These include immersive learning experiences. Like जो virtual reality है it creates more engaging realistic environments जहाँ learners जो हैं they can practice their skills, they can explore concepts and they can interact with the content in multiple ways that are impossible in traditional क्लासरूम्स, जो कि फर्दर एनहेंस करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन. देन सेफ एनवायरनमेंट फॉर ट्रेनिंग. जो वर्चुअल रियलिटी है ये ऑल्सो अलाउ करते हैं यूजर्स को टू प्रैक्टिस टास्क्स, प्रोसीजर्स और डेंजरस सिनारियोज इन ए कंट्रोल्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट विदाउट एनी रियल वर्ल्ड रिस्क, विच मेक्स ट्रेनिंग सेफर एंड मोर इफेक्टिव. देन इम्प्रूव्ड एंगेजमेंट एंड रिटेंशन. वर्चुअल रियलिटी जो है इट ऑल्सो मेक्स लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस मोर इंटरेक्टिव एंड इमर्सिव, जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को दैट कीप देम एंगेज्ड एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स देम टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन और स्किल्स बेटर कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स. देन एक्सेसिबिलिटी टू डिस्टेंट और डेंजरस एक्सपीरियंसेस. जो वर्चुअल रियलिटी है ये ऑल्सो अलाउ करते हैं यूजर्स को टू विजिट प्लेसेस और एक्सपीरियंस दो सिचुएशंस दैट आर फार अवे, दैट आर hazardous और दैट आर otherwise inaccessible in real life, such as climbing mountains, exploring space or touring disaster zones, all safely from their location. Then enhanced creativity and design testing. वर्चुअल रियलिटी जो है ये ऑल्सो अलाउ करते हैं यूजर्स को टू एक्सपेरिमेंट विद डिज़ाइन ideas and layouts in virtual space. Like जो designers हैं as I mentioned, या जो creators हैं they can visualize concepts, they can test alternatives and they can also make changes quickly, which further fosters creativity and innovation without the cost of risk of real world prototypes. ठीक है. इसके अलावा there are various challenges that virtual reality faces. These include high cost of equipment. जो वर्चुअल रियलिटी है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस की, लाइक हेडसेट्स, मोशन कंट्रोल्स, ग्लव्स एंड पावरफुल कंप्यूटर्स की, जो कि वो हमें बहुत ही एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं एंड विच ऑल्सो मेक्स इट लेस एक्सेसिबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस. देन मोशन सिकनेस. कई यूजर्स जो हैं दे एक्सपीरियंस डिजीनेस, दे एक्सपीरियंस नॉजिया और डिस्कम्फर्ट while using virtual reality because उनकी जो visual senses होती हैं they perceive the movement in the in the virtual world, but उनकी जो body होती है that remains stationary or that remains there, which further causes sensory mismatch. Then content limitations. जो virtual reality content है it is still growing and it is still in the developing stage, so there may be
limited high quality applications or simulations available, which restricts the full potential and variety of virtual reality usage. Then need powerful hardware. जो वर्चुअल रियलिटी है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स या ग्राफिक कार्ड्स और सेंसर्स की टू रन इट स्मूथली एंड विदाउट द सफिशिएंट हार्डवेयर जो एक्सपीरियंस है दैट कैन बी टू लैगी, that can be low quality, and that can be also uncomfortable, which can limit its effectiveness and accessibility. Then physical space required for movement. कई virtual reality experiences जो हैं they need an open space for users to move around safely, because limited space जो हैं that may restrict the interaction, that may increase the risk of accidents, and that may also reduces the overall virtual experiences. ठीक है ना। जो फ्यूचर है वर्चुअल रियलिटी का दैट विल बी इंटीग्रेशन विथ AI. By combining virtual reality with artificial intelligence, we can create smarter adaptive virtual environments that can respond dynamically to the user actions, and that will also provide the personalized experiences to the users, which will make simulations more realistic and interactive. Then virtual reality in metaverse. वर्चुअल रियलिटी जो है ये ऑल्सो अलाउ करते हैं सोशल एंड बिजनेस इंट्रैक्शंस को इन शेयर्ड वर्चुअल स्पेसेस, जो कि अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को टू मीट, कोलैबोरेट, वर्क एंड सोशलाइज इन इमर्सिव 3D एनवायरनमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन. देन वायरलेस लाइट वेट हेडसेट्स. जो VR हेडसेट्स हैं they are now becoming wireless and more lighter, which makes them more comfortable, portable and convenient to use for longer periods without being connected to a computer or console. Then remote collaboration. जो virtual reality है it also enables virtual offices and meetings, जो कि allow करते हैं teams को to collaborate, brainstorm and to interact in immersive 3D environments, which will make remote work more engaging and productive. Then haptic feedback suits. Haptic suits जो हैं these suits provide touch and force sensations across the body by allowing users to feel interactions in the virtual world. This will also enable full body immersion that further makes virtual reality experiences like training, gaming, simulations more realistic and engaging. ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें जो वर्चुअल रियलिटी है it completely transforms how we experience and how we interact with the digital content by creating immersive, interactive and realistic virtual environments, जो कि allow करते हैं users को to explore, to learn and to work and play in ways that were not possible with traditional screens or media. And from education and healthcare to gaming and design, जो virtual reality है it is creating more immersive, engaging and impactful experiences that are revolutionizing the industries, that enhance the learning, and that also improves the training, and that also enables innovative design, and that also transform entertainment and work environments. ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट इज़ व्हेन जो मशीन्स हैं स्पेशली कंप्यूटर्स दे सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस. मीन्स जो ये मशीन्स या जो कंप्यूटर्स हैं दे कैन थिंक, दे कैन लर्न और दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो दे कैन मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बींग्स. Like they can perform these tasks those tasks that normally requires human reasoning and understanding. एंड ये जो AI सिस्टम्स हैं इनको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेजेस, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स एंड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. एंड थ्रू मशीन लर्निंग they can improve their performance over time without being explicitly programmed for every task. ठीक है. And there are various key subfields of artificial intelligence. These include first जो है that is machine learning. Machine learning जो है it is one of the major subfield of artificial intelligence.
जहाँ सिस्टम्स जो हैं दे लर्न फ्रॉम डेटा, दे इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम विदाउट नीडिंग explicit programming for each task. Like for example email spam filters हैं या मूवी और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम्स. सेकेंड जो है सेकेंड इज डीप लर्निंग. डीप लर्निंग जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जो कि यूज़ करती हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को टू मिमिक और टू लर्न द ह्यूमन बीइंग ब्रेन फंक्शंस और वर्क्स. एंड यह हमें स्पेशली इफेक्टिव देखने को मिलते हैं फॉर कम्प्लेक्स टास्क्स लाइक इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. थर्ड इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अलाउ करते हैं मशीन्स को टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड टू जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज. लाइक फॉर एग्जांपल चैट बॉट्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स या लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स. फोर इज कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन जो है इट इज़ ऑल्सो ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अलाउ करते हैं मशीन्स को टू सी, टू इंटरप्रेट एंड टू अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस और वीडियोस. लाइक फॉर एग्जांपल फेशियल रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या सेल्फ ड्राइविंग कार विजन सिस्टम्स की अगर हम बात करें. फिफ्थ और रोबोटिक्स. रोबोटिक्स जो है इट इज़ बेसिकली द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू विच जो मशीन्स हैं उनको क्रिएट किया जाता है जो कि परफॉर्म करते हैं बहुत सारे टास्क्स को ऑटोमेटिकली और सेमी ऑटोनोमसली. लाइक फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स जो हैं दैट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग या सर्जिकल टूल्स जो हैं दैट आर यूज्ड इन हेल्थ केयर और डिलीवरी रोबोट्स. सिक्स्थ आर एक्सपर्ट सिस्टम्स. एक्सपर्ट सिस्टम्स जो हैं दीज आर द एआई प्रोग्राम्स जो कि सिमुलेट और जो कि सीखते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स ऑफ द ह्यूमन एक्सपर्ट इन ए स्पेसिफिक फील्ड. लाइक फॉर एग्जांपल सिस्टम्स जो हैं ये जो एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं इनको यूज़ किया जाता है फॉर मेडिकल डायग्नोसिस, लीगल डिवाइस और फॉर ट्रबल शूटिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. ठीक है. इसके अलावा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दीज इंक्लूड फर्स्ट जो है दैट इज नैरो एआई और वी कैन से वीक एआई. ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड इट कैन नॉट ऑपरेट बियॉन्ड देयर प्रोग्राम्ड फंक्शन. लाइक फॉर एग्जांपल श्री, एलेक्सा या गूगल मैप्स या रिकमेंडेशन इंजन्स की अगर हम बात करें. सेकंड जो है जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई. ये जो टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क विच ह्यूमन बींग्स कैन understand, they can learn or which they can reason across different domains, and it is still theoretical which is not yet achieved. थर्ड is super AI. Super AI जो है it is also a hypothetical or theoretical form of artificial intelligence that would in future surpass the human intelligence in all areas including problem solving, creativity and decision making, and it is also currently theoretical and it does not exist yet. इसके अलावा there are various applications or uses of artificial intelligence. These include first जो है that is in healthcare. Like जो artificial intelligence systems हैं they analyze medical data, they analyze images, they test results to help doctors in identifying diseases accurately and quickly. इसके अलावा ये आल्सो एनालाइज करते हैं पेशेंट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री एंड लाइफस्टाइल को टू क्रिएट कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स. और ये आल्सो हेल्प करते हैं सर्जन्स को टू प्लान, गाइड एंड टू परफॉर्म सर्जरीज विदाउट ग्रेटर प्रेसिशन. सेकंड इज इन बिजनेसेस. लाइक जो एआई पावर्ड chatbots हैं they interact with the customer, they answer queries and they provide support 24/7. और ये आल्सो एनालाइज करता है हिस्टोरिकल डेटा को टू फोरकास्ट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर एंड फ्यूचर आउटकम्स. एंड ये जो एआई सिस्टम्स हैं दे आल्सो मॉनिटर ट्रांजैक्शंस एंड पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इन रियल टाइम. थर्ड इज इन एजुकेशन. जो AI powered tutoring systems हैं they also provide personalized learning experiences by adapting lessons to a student's pace, strengths and weaknesses. और ये also analyze करते हैं students performance, learning style and progress को to create customized learning plans.
फोर्थ इज इन ट्रांसपोर्टेशन। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट allow vehicles to navigate, to detect obstacles, and it makes driving decisions more realistic without needing human intervention. और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट कैन ऑल्सो एनालाइजेस ट्रैफिक डेटा इन रियल टाइम टू ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो, टू रिड्यूस कंजेशन एंड टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी। फिफ्थ इज इन एग्रीकल्चर। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट ऑल्सो यूज ड्रोन, सेंसर्स एंड सैटेलाइट इमेजरी टू मॉनिटर क्रॉप्स फॉर डिजीजेस, पेस्ट्स और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। और ये ऑल्सो हेल्प करते हैं फार्मर्स को टू ऑप्टिमाइज प्लांटिंग, इरीगेशन एंड फर्टिलाइजेशन बाय एनालाइजिंग सॉइल, वेदर एंड क्रॉप डेटा। सिक्स्थ इज इन डेली लाइफ, लाइक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस असिस्टेंट्स हैं लाइक श्री, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, दे हेल्प यूजर्स टू परफॉर्म टास्क्स बाय यूजिंग वॉइस कमांड्स सच एज सेटिंग रिमाइंडर्स, प्लेइंग म्यूजिक और कंट्रोलिंग स्मार्ट होम डिवाइसेस, विच मेक्स आवर डेली लाइफ मोर कन्वीनियंट। और ये ऑल्सो कंट्रोल करते हैं होम डिवाइसेस एंड सिस्टम्स को टू मेक लिविंग मोर कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड सिक्योर। और ये ऑल्सो एनालाइज करते हैं इनकमिंग ईमेल्स को टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड टू फिल्टर स्पैम, फिशिंग और इम्पोर्टेंट मैसेजेस। इसके अलावा देयर आर वेरियस बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दीज इंक्लूड एफिशिएंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इट ऑटोमेट रिपीटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क्स, जो कि अलाउ करते हैं ह्यूमन बींग्स को टू फोकस ऑन मोर कम्प्लेक्स एंड क्रिएटिव वर्क। देन स्पीड। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट कैन ऑल्सो एनालाइज, इट कैन ऑल्सो प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा मच फास्टर देन ह्यूमन्स, which enables quick decision making and real time responses. Then accuracy. जो artificial intelligence systems हैं, they can also perform tasks with high precision, which further minimizes the mistakes that human beings might make. Then 24/7 availability. जो AI systems हैं, they can work continuously without breaks or without any fatigue by providing constant service and support. Then personalization. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट कैन ऑल्सो एनालाइज इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंसेस एंड रिकमेंडेशंस। ठीक है। इसके अलावा देयर आर वेरियस चैलेंजेस दैट AI फेसेस। दीज इंक्लूड जॉब डिस्प्लेसमेंट। एज जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट ऑटोमेट टास्क्स। बहुत सारे जॉब जो हैं, स्पेशली रिपीटिव या रूटीन जॉब जो हैं, दे may be replaced by machines, which further leads to the workforce shift and the need for reskilling or new roles. Then bias in data. जो artificial intelligence systems हैं, they can learn from existing data and अगर वो data जो है that will be biased, जो artificial intelligence है, it can make unfair or unethical decisions. Then privacy concerns. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट ऑफन कलेक्ट एंड इट ऑफन एनालाइज पर्सनल डेटा बाय रेजिंग कंसर्न्स अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज बीइंग यूज्ड, स्टोर्ड एंड शेयर्ड. इट कैन पोटेंशियली कंप्रोमाइज इंडिविजुअल प्राइवेसी. देन सिक्योरिटी रिस्क्स. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, दे कैन बी ऑल्सो वल्नरेबल टू हैकिंग और मैलिशियस यूज, which may further lead to the data breaches, system manipulation or harmful outcomes. Then ethical questions. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट ऑल्सो रेजेस इथिकल कंसर्न्स बिकॉज जो मशीन्स हैं, दे मे नीड टू मेक डिसीजंस दैट कैन अफेक्ट द ह्यूमंस. ठीक है। और जो फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दैट विल इंक्लूड मोर ह्यूमन लाइक इंटरेक्शंस. लाइक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, it will become better in near future at understanding and responding to human languages, emotions and social cues through advanced neural language processing and emotional intelligence, which makes our interactions with machines more natural and intuitive. Then AI in the metaverse. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट विल फर्दर पावर virtual assistants and avatars in the metaverse by enabling users to interact, receive guidance and to collaborate in immersive virtual environments, which makes digital world more intelligent and responsive. Then AI governance and ethics. As जो AI है, it becomes more powerful
due to the new laws, regulation, and ethical standards that are being developed to ensure responsible use, fairness, transparency, and safety in AI systems. Then AI powered scientific discovery. जो artificial intelligence है, it can also analyze massive data sets. It can also simulate experiments, and it can also identify patterns faster than humans, which will further accelerate research, innovation, and the development of new technologies in various fields like medicine, physics, and material science. Then collaboration with humans. जो artificial intelligence है, it will increasingly act as a partner, or we can say co-worker, by assisting human beings in decision making, solving problems, and creative tasks rather than only performing automatic functions. ठीक है. ओवरऑल अगर हम देखें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट इज़ completely transforming how we live, work, and how we interact with the technology by enabling smarter, faster, and more personalized experiences, automated tasks, improved decision making, and creating new possibilities across industries and daily life. And it also has an immersive potential to improve our world, and it also requires careful attention to ethics, fairness, and responsibility to ensure that इसकी जो डेवलपमेंट और इसका जो यूज़ है, दैट रिमेन्स सेफ, अनबाइस्ड, एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल पीपल. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, या आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. And you can also follow me on the social media platforms, and for PDF you can join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like, and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.